Hello viewers, as you have observed that I was not able to post videos since last month due to Durga Puja occasion. For that I feel bad, but from now onwards I will continue my videos each week on a regular basis. So please do keep watching my videos, and if you like my channel then please do press here the subscribe button, and after getting subscribed to this channel, please do press this bell icon so that you are the first to know whenever I post my videos. So today we are going to discuss on the topic catchment. So basically, what is catchment? Catchment, it is an area of land draining into a stream or a water course at a given location is known as catchment. ये क्या है? Catchment area basically सोचो ये हमारा एक कैचमेंट एरिया, दिस इज आवर कैचमेंट एरिया। ओके, ये हमारा ये जो बाउंड्री के साथ ये हमारा एक एरिया है, कैचमेंट एरिया। क्या है ये कैचमेंट एरिया? ये एरिया ऑफ लैंड, ये जितने भी एरिया है हमारा, ये जो रेड बाउंड्री के अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये जो एरिया है इस बाउंड्री के अंदर, ये एरिया से जितने भी वाटर आके इस रिवर और स्ट्रीम पे आके मिल रहे हैं, ये ट्रिब्यूटरीज है। सोचो ये एक पाथ है जो कि रन ऑफ या फिर जो वाटर आफ्टर रेनफॉल, सोचो ये एरिया में रेनफॉल होने के बाद जो जितने भी वाटर है जब ये ड्रेन आउट हो रहे हैं इस एरिया से आके, ये जो ट्रिब्यूटरीज है हमारा, ये बीच वाले ये जो सेंट्रली आप लोग लाइन देख सकते हो, ये एक क्या है, रिवर है, स्ट्रीम है। ये जो वाटर हमारा कैचमेंट एरिया से होके जो ट्रिब्यूटरीज सॉरी जो स्ट्रीम पे आके मिल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया फॉर दिस स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि इस एरिया से जो वाटर क्या है कलेक्ट होके आके इस स्ट्रीम पे मिल रहा है। सो दिस इज द कैचमेंट एरिया, द एरिया ऑफ लैंड ड्रेनिंग इनटू दिस स्ट्रीम or a water course at a given location is known as catchment area. Okay, so here this is the stream, this central line, this is the stream, and where this area and the water is coming from this catchment area. Okay, so now and it is also known as drainage area, इसको हम लोग drainage area भी बोलते हैं और drainage basin भी। ड्रेनेज एरिया के साथ साथ हम लोग इसको ड्रेनेज बेसिन भी बोलते हैं। ड्रेनेज एरिया, दिस कैचमेंट एरिया इज ऑल्सो नोन एज ड्रेनेज एरिया और ड्रेनेज बेसिन। और यूएसए में इसका एक और नाम है दैट इज़ नोन एज वाटरशेड, इसको वाटरशेड के नाम से भी जाना जाता है यूएसए में। अब ये वाटरशेड, इस टर्म को ख्याल रखिए क्योंकि इसके बाद इसमें थोड़ा सा इस ये नेक्स्ट लाइन से इस नेक्स्ट पॉइंट से कन्फ्यूजन होने वाला है। यूएसए में हम लोग क्या, दिस कैचमेंट एरिया इज ऑल्सो नोन एज वाटरशेड। ओके, एंड द see this was our catchment area I had drawn earlier, and this is our stream and the water coming into this stream from this catchment area. Okay, so boundary between this catchment area and its neighboring area is known as ridge. So this is our catchment area, streams, water coming from this catchment area and meeting into this streams, and the boundary. So this is the red here, it is the boundary. So the water, sorry, the boundary between this catchment area, this is the boundary between this catchment area, this is our catchment area, and this is the neighboring area. Okay, inside is the catchment area, this inner side is the catchment area, this inner side is the catchment area, this blue color pen inner side is the catchment area, and this outside is the neighboring area for this catchment, which is mentioned by this blue line, the boundary between catchment area and the neighboring area. Right, so the boundary, this is the boundary between the catchment area, this is the catchment area, and this is the neighboring area surrounding the catchment. So the boundary between the catchment area and this neighboring area is known as ridge. इसको हम लोग ridge बोलते हैं कहाँ पे? इंडिया पे इसको ridge बोला जाता है, और डिवाइड बोला जाता है यूएसए में, एंड वाटरशेड के नाम से जाना जाता है यूके। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला वाटरशेड हम लोग किसको बोलते हैं? कैचमेंट एरिया को बोलते हैं, बट क्या वो यूएसए में?
In USA, catchment area is also known as watershed. But in UK, the boundary between the catchment area और उसके neighborhood उसको हम लोग watershed बोलते हैं. तो इस दो टर्म के बीच में हम कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ मेजर्ड बाय प्लेनीमीटर. ये जो हमारा ये टोटल कैचमेंट एरिया है, ये जो एरिया इनसाइड है पूरा, कितना कैचमेंट एरिया है जो कि वाटर ड्रेन आउट होके आ रहा है, स्ट्रीम पे आके मिल रहा है, यही तो है टोटल कैचमेंट एरिया इस स्ट्रीम के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए. सो ये कैचमेंट एरिया, टोटल कैचमेंट एरिया को कैलकुलेट से करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं प्लेनीमीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. Next point is various types of catchment. There are different types of catchment, shapes of catchment actually, different types of shapes. हम लोग यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ए पे ये जो शेप है ये दिस इज फैन लाइक शेप. दिस इज व्हाट लाइक शेप? दिस इज फैन लाइक शेप. fan like shape. This is fan like shaped. Okay. So this is fan like shaped. As we can see ये जो fan like shape है हमारा, इसमें क्या है, ये यहाँ से वाटर जो है, दिस वॉज द इनलेट, यहाँ से वाटर आ रहा है और हमारा क्या है कि वाटर यहाँ से इनलेट हो रहा है एंड वाटर, दिस इज द आउटलेट एंड डेफिनेटली दिस इज आवर स्ट्रीम. दिस इज आवर स्ट्रीम, राइट. ये जो ब्लू लाइन हमने मेंशन किया है वो हमारा स्ट्रीम है, बीच का रिवर. एंड व्हाट इज विच अप टू विच एरिया इट इज़ आवर कैचमेंट. ये जो फैन लाइक शेप है ये है हमारा कैचमेंट. ये दिस इज आवर कैचमेंट. ओके, दिस इज आवर कैचमेंट. और वाटर कहाँ से आ रहा है स्ट्रीम पे, किससे आ रहा है ना, ये ट्रिब्यूटरीज से आ रहा है. हम देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर का ये जो ब्रांचेस है ये ट्रिब्यूटरीज, इसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, दिस रेड लाइन्स. सो ट्रिब्यूटरीज से वाटर आ रहा है, आके स्ट्रीम पे मिल रहा है एंड दिस ब्लू बॉर्डर इज कैचमेंट. ये कैचमेंट का जो शेप है ये फैन लाइक है. अब इसका क्या मतलब है कि ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का क्या मतलब है कैचमेंट का, कि देखो जैसे यहाँ से जो वाटर हमारा आ रहा है ये इनलेट से, और ये हमारा कलेक्टिंग पॉइंट है वाटर कैचमेंट का, ये यहाँ आके वाटर आउटलेट पे कलेक्ट हो रहा है. क्या है, जो इनलेट के समय हम देखते हैं कि ये इस एरिया का, इसमें क्या है हमारा कैचमेंट जो है इस एट द इनलेट साइड इट इज़ लार्जर इन शेप, राइट. कैच तो इस इनलेट पॉइंट पे क्या है हमारा कैचमेंट, ये वाला साइड हम देख सकते हैं ये लार्जर साइड है. फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये नैरो हो रहा है एट दैट आउटलेट. ठीक है. सो क्या होता है कि यहाँ से जब वाटर जब इस लार्जर एरिया से इनलेट पॉइंट में, ये जो चूँकि हमारा इस साइड पे इनलेट पॉइंट में क्या है, जहाँ पे इनलेट हुआ है वाटर स्ट्रीम, तो इस पे आके क्या हो रहा है, जब वाटर मिलेगा तो ये चूँकि एरिया बड़ा है तो वाटर जब इस एरिया से कलेक्ट हो के ट्रिब्यूटरी से जब स्ट्रीम पे आके मिलेगा तो इसमें क्या है, टाइम हमको ज़्यादा लगेगा, राइट. फिर जाके ये स्ट्रीम पे बहेगा और फिर ये आउटलेट में जाके कलेक्ट होगा. अब जब हम बी पी पे आते हैं, ये भी एक फैन शेप्ड है, बट क्या है, इट इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ ए. हम देख सकते हैं कि ये रिवर्स है ए का. क्या है, इनलेट पॉइंट जो है उसमें क्या है, ये जो एरिया है ये कैचमेंट का एरिया ये छोटा है. इससे क्या है, जब वाटर ये तुरंत आके स्ट्रीम पे मिल जाएंगे. ठीक है, वाटर जल्दी से आके स्ट्रीम पे मिल रहा है और यहाँ वाटर जो आउटलेट पॉइंट पे वाटर इजीली जल्दी से कलेक्ट हो सकता है. क्यों? क्योंकि और ये जो पॉइंट है हम अब यहाँ देख सकते हैं कि आउटलेट पॉइंट में एरिया बड़ा है तो क्या हुआ, वाटर यहाँ से आके स्ट्रीम पे मिलेगा और वाटर यहाँ पे आके स्ट्रीम पे मिलेगा. तो जब क्या है आउटलेट पॉइंट में इस एरिया पे, जो आउटलेट पॉइंट का एरिया बड़ा होने की वजह से वाटर यहाँ पे आके स्ट्रीम पे मिला हमारा, और क्या है यहाँ पे कलेक्ट हो गया, आउटलेट पे कलेक्ट हो गया बस. बट इस केस में क्या था, फर्स्ट केस में चूँकि इनलेट एरिया पे हमारा क्या है, इनलेट एरिया पे कैचमेंट एरिया जो है इनलेट पे, इनलेट ऑफ स्ट्रीम पे कैचमेंट एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या है, पहले यहाँ वाटर ये डिफरेंट डिफरेंट जो दूर की एरिया है यहाँ से आके स्ट्रीम पे कलेक्ट होंगी, फिर ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जाके आउटलेट पे मिलेगा. सो इसमें क्या है, द रन ऑफ होके जो पीक डिस्चार्ज होने पे, जहाँ वाटर का इस पॉइंट में जब कलेक्ट हो रहा है, द पीक डिस्चार्ज फॉर दिस कैचमेंट इज द टाइम फॉर पीक डिस्चार्ज, द टाइम टू
हैव पीक डिस्चार्ज, इस पॉइंट में क्या होगा, ज़्यादा होगा, बट इस पॉइंट में क्या होगा, कम होगा, राइट। एंड नेक्स्ट सी पॉइंट क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का नेचर है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कैचमेंट एरिया है वाइड है, फिर जाके नैरो हो रहा है, फिर जाके वाइड हो रहा है, तो ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नेचर है। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ कैचमेंट किसको ये इफेक्ट करेगी, सबसे ज़्यादा हमारा पीक रन ऑफ को। रन ऑफ क्या है, जब हमारा रेनफॉल आके हमारे मदर अर्थ पे आके मिल रहे, उसके बाद फिर जो ये जो वाटर ट्रेवल होके जाके जो सरफेस हम लोग का जैसे कि नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल जो स्टोरेज पे आके मिल रहे, फॉर एग्जांपल जैसे रिवर लेक स्ट्रीम्स पे आके जब वाटर मिलते हैं, ये वाटर ट्रेवल करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कैचमेंट्स या फिर एरिया से ट्रेवल होने के बाद, सो ये जो वाटर आके मिलता है इस एरिया, ये जो फ्लो ऑफ वाटर, इसको हम लोग रन ऑफ बोलते हैं। आफ्टर रेनफॉल, रेनफॉल के बाद वाटर जब लैंड से ट्रेवल होके जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स लेक्स में जाके मिलती है, तो ये होता है रन ऑफ। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कैचमेंट होने की वजह से, शेप्स होने की वजह से ये रन ऑफ को इफेक्ट कर रहा है। पीक रन ऑफ जो कलेक्ट हो रहा है इस आउटलेट पे, इसके टाइम को इफेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट में हमारा टाइम क्या है, ज़्यादा लग रहा है ये पीक रन ऑफ यहाँ कलेक्ट होने पे, और इस पॉइंट में कम लग रहा है, और ये तो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नेचर है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर्स कैरेक्टराइजिंग अ कैचमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि कैचमेंट को मीन्स कैरेक्टराइज करे कि ये स्पेशलिटी है कैचमेंट की, या फिर ये खामी है। तो ये जो फैक्टर्स है जो ऑल कैचमेंट के साथ रिलेटेड है, हम उसमें अब पढ़ेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को फ्यूचर में हमारा इफेक्ट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जब ये हम एक कैचमेंट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज कैचमेंट, यहाँ पे इसकी एक स्ट्रीम्स होगी और वाटर आके इस कैचमेंट पे, इस कैचमेंट से वाटर आके स्ट्रीम पे मिल रही है थ्रू द ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। क्या होता है ये नेचुरल वेजिटेशन में, सोचो हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा ग्रासेस या फिर क्रॉप्स वेजिटेटेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासेस क्रॉप्स यहाँ पे लगाए गए हैं। तो इससे क्या है, जब हमारा रेनफॉल आएगा इस कैचमेंट पे, व्हेन रेनफॉल हैपन्स, then at that time when rainfall occurs, then it will take a large time to travel from these catchment, passing through these tributaries, collecting to these tributaries and meeting these streams. Why? Because it will take long time, क्योंकि ये जो ग्रास है, प्लांट्स है, हम खुद देख सकते हैं ये प्लांट्स जो है वाटर को सोक कर लेगा। तो इससे क्या है, जो मैक्सिमम जो वाटर है यहाँ स्ट्रीम्स पे नहीं आ पाएंगे। इसका क्या है एक्चुअली रेशियो क्या है, अगर यहाँ ठीक ठाक बहुत ज़्यादा वेजिटेशंस है, जनरली एरिया वेजिटेशन की वजह से लगभग 40% हमारा वाटर जो है ये वेजिटेशन एरिया में ही चले जाता है, और बाकी 60% ही वाटर आके कलेक्ट हो पाता है स्ट्रीम से। ओके, सो ये एक नेचुरल वेजिटेशन या फिर आर्टिफिशियल जो भी है वेजिटेशन का ये एक प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा अगर इस एरिया में क्रॉप है, इस कैचमेंट एरिया में जो तो पानी है जो कि आके ये स्ट्रीम पे मिल रहे हैं, उसका परसेंटेज क्या है वो घट जाएगा। ठीक है, सो एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेप्शन। नाउ व्हाट इज इंटरसेप्शन, क्या है, इट डिपेंड्स मेनली मोस्टली ऑन वेजिटेशन टाइप। ये इंटरसेप्शन भी वेजिटेशन टाइप्स पे, उसके शेप साइज पे और उसके जैसे कि लीव्स और ब्रांचेस पे, इस पे डिपेंड करता है इंटरसेप्शन। रेनफॉल अमाउंट पे, इंटेंसिटी एंड ड्रॉप साइज, विंड स्पीड, टेम्परेचर, ये सारे पे इंटरसेप्शन डिपेंड करता है, डिपेंड मोस्टली ऑन वेजिटेशन टाइप। इंटरसेप्शन बेसिकली मतलब क्या है, फर्स्ट हम जान लेते हैं। इंटरसेप्शन का मतलब क्या है, वो होता है अवरोधन, या फिर बोलते हैं जिसको हम लोग पाबंदी लगा देना। तो इसमें क्या है इंटरसेप्शन का, यहाँ क्या मतलब हुआ कि जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ग्रास है या फिर बड़े बड़े पेड़ है, तो यहाँ पे जब रेनफॉल आता है इस कैचमेंट एरिया पे, ये बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से क्या है, इस पेड़ का जो ब्रांचेज या फिर लीव्स कैनोपी होता है, उस पर जब वाटर आके गिरता है, तो वो जो ये ट्रीज है, यहाँ पे जो ये क्रॉप है, ये क्या करेंगे, पाबंदी लगाएंगे किसका, ये जो रेनफॉल यहाँ हो रहा है, ये रेनफॉल होने के बाद इस ट्रीज के जब ब्रांच और कैनोपी पे जाके गिरते हैं, तो ये क्या करता है, ये ब्रांच और कैनोपी वगैरह से ये क्या है, वापस इसको एवापोरेट कर देते हैं किस पे ना, एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन करते हैं।
तो यही है क्या है इंटरसेप्शन। क्या ये जो लॉस ऑफ वाटर है थ्रू दिस ब्रांचेस कैनोपी लीव्स, इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। ये क्या है, अदरवाइज ये वाटर जो है कैचमेंट पे कलेक्ट होता है, कैचमेंट से सीधा हमारा स्ट्रीम पे, ये जो स्ट्रीम है या फिर ये रिवर है, इस पे आके मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैचमेंट साइज। ये फैक्टर्स जो कि क्या क्या कुछ कुछ ये जो फैक्टर्स, ये टेक्निकल टर्म्स है, वेजिटेशन, इंटरसेप्शन, जो क्या है कैचमेंट का जो फैक्टर्स है, ये कैचमेंट को कैरेक्टराइज कर रहा है। ये कैसे टाइप का कैचमेंट है, इसमें से हमको जो है जो रन ऑफ है या फिर जो पानी है जो रन ऑफ आके स्ट्रीम से मिल मिल रहा है, वो क्या है, अमाउंट सफिशिएंट है नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स है। नेक्स्ट है कैचमेंट का साइज, स्लोप और टोपोग्राफी। कैचमेंट का साइज, स्लोप और टोपोग्राफी हमने पिछले ही स्लाइड में जैसे कि देखा, कैचमेंट का साइज जैसे कि फैन शेप है या फिर कॉम्प्लेक्स शेप है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैचमेंट के साइज से, या फिर स्लोप है, ये स्टीप स्लोप है या फिर प्लेन। अगर ये प्लेन स्लोप हुआ, ऐसा हुआ, तो पानी क्या है, ये ज़्यादा देर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। जो दूर दूर के पानी होंगे, दूर साइड्स के जो पानी होंगे, तो पूरा यहाँ स्ट्रीम्स पे आने में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लगा देंगे या फिर शायद आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, लॉस्ट हो जाएंगे उससे पहले, रन ऑफ आके मिलने से पहले इस स्ट्रीम पे। पर अगर ये हमारा ये जो एरिया है, ये कैचमेंट एरिया, अगर ये स्लोप हुआ, ये अगर स्टीप हुआ, तो पानी क्या है, इस पॉइंट पे होने की वजह से ये तुरंत जाके हमारा डाउन स्ट्रीम यहाँ स्ट्रीम पे आके तुरंत इस पॉइंट से इस पॉइंट में जल्दी आके मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, अगर हमारा ये जो एरिया हुआ अगर स्टीप हुआ, तो अगर ये स्टीप हुआ, ऐसे अगर स्लोप हुआ, तो पानी इस पॉइंट से आके इस पॉइंट में जल्दी आके ट्रेवल करके स्ट्रीम पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, और ये इसकी टोपोग्राफी, टोपोग्राफी कैसा है, इसका साइज शेप टोपोग्राफी, कितने वेजिटेशन है, प्लांट्स है नहीं है, ये सारी टोपोग्राफी। इसमें बिल्डिंग्स है नहीं है, बिल्डिंग्स है तो क्या इसके रूफ में आके कुछ वाटर कलेक्ट हो जाएंगे, फिर तो वो वाटर आके स्ट्रीम्स पे नहीं मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसका ये कैरेक्टर है, जो कि ये एक फैक्टर है जो कि कैचमेंट को कैरेक्टराइज कर रहा है। फिर नेक्स्ट है क्या, फील्ड ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, ये और एक जो फैक्टर है जो आके इफेक्ट कर रहा है क्या हमारे कैचमेंट को, ये फील्ड ओरिएंटेशन। क्या ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड पे जो हम लोग लैंड है यहाँ, एग्रीकल्चरल लैंड, इसमें हम लोग क्या करना है, एग्रीकल्चर लैंड में इरिगेशन करना है, तो क्या है, इसका फील्ड ओरिएंटेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है। क्या क्या कि जो अगर नैरो मतलब जो लोअर साइड हमारा एरिया है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे, तो इजीली क्या है, थ्रू द ग्रेविटी वाटर हम लोग वहाँ सप्लाई कर सकते हैं यहाँ इरिगेशन के लिए। तो ये एक फील्ड ओरिएंटेशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर नेक्स्ट है एंटीसीडेंट सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। क्या है, अगर ये पानी फॉर एग्जांपल, क्या अगर सोचो ये हमारा जो ये कैचमेंट है, पहले से ही क्या है, इसमें रेनफॉल कुछ ही घंटे पहले आया है या फिर कंटिन्यूस रेनफॉल हो रही है, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल यहाँ जो है वो कंटिन्यूस है। इससे क्या है, जो हमारा ये एरिया का जो सॉइल है, इस कैचमेंट का जो सॉइल है, ये मॉइस्चर रहेगा, वेटी रहेगा, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेंगे। तो इस वजह से क्या है, इसमें क्या है, जो हमारा रेनफॉल आने की वजह से, इसके कंटिन्यूस रेनफॉल आने की वजह से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है आके स्ट्रीम पे मिलेंगे। पर अगर इसका ऑपोजिट हुआ, सोचो ये एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसमें रेयरली ही रेनफॉल आता है, तो इस केस में ये कैचमेंट का जो ये रेनफॉल है, इस पॉइंट में क्या होगा, पहले इन्फिल्ट्रेट करके नीचे अंडरग्राउंड वाटर सरफेस में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो पहले वो अपना मॉइस्चर जो कंटेंट है, उसका मॉइस्चर जो रिक्वायरमेंट है, उसको सोक करने के बाद ही जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रन ऑफ के तौर पे जाके स्ट्रीम पे मिलेंगे। तो ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कैचमेंट को कैरेक्टराइज कर रहा है। अदर कैचमेंट इन्फ्लुएंसेस में हम लोग बहुत सारा टर्म देख सकते हैं, जैसे कि है हमारा स्ट्रीम डेंसिटी, स्ट्रीम की क्या डेंसिटी है, कितने सारे ट्रिब्यूटरीज है जो कि आके मिल रहे हैं कैचमेंट पे। जितना ज़्यादा स्ट्रीम डेंसिटी, जितने ज़्यादा फ्लो होके वाटर, जितना ज़्यादा वाटर लाइन में आके स्ट्रीम पे मिल रहे हैं, उतना जल्दी ही वाटर आके क्या होगा, हमारा ये जो मेन स्ट्रीम पे मिलेगा, राइट। और फिर है हमारा क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स। क्या होता है ये ह्यूमन फैक्टर्स, क्या होता है ये ह्यूमन फैक्टर्स की ना, हमारा जो ह्यूमन का जो ये इन्फ्लुएंस है, जैसे कि हम बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, डैम बिल्डिंग, ये सारे क्या है, ह्यूमन के कुछ कंस्ट्रक्शंस है। जैसे कि हमने बोला था ना, मैंने कुछ देर पहले बोला था, यहाँ अगर कुछ बिल्डिंग है तो इसके रूफ में आके वाटर मैक्स कलेक्ट हो जाएगा, तो वो वाटर फिर आके
और हमारा इस स्ट्रीम पे सब क्या है नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिर अगर जैसे कि डीप बहुत ज़्यादा यहाँ क्रॉप्स है, बहुत ज़्यादा यहाँ प्लांट्स है, तो उसके वजह से भी वाटर आके ज़्यादा हमारे यहाँ ट्रीज़ में नहीं मिलेंगे। पर अगर हमने ह्यूमन फैक्टर्स, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, यहाँ का जो क्रॉप है उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉप होने की वजह से जो वाटर आके कैचमेंट से नहीं मिल पा रही थी स्ट्रीम पे, हमने क्या किया, यहाँ के जो क्रॉप्स है उसको हमने कट करना शुरू किया, तो फिर वाटर आके इजीली स्ट्रीम्स पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पूरा प्लेन सॉइल हो जाएगा जिसमें कि क्रॉप्स नहीं है। तो ये सारे, या फिर कैनाल्स प्रेजेंट है तो उसमें भी वाटर स्टोर होती है, फिर वो वाटर आके स्ट्रीम्स पे नहीं मिल सकती है। वो कनाल वाटर से हम लोग इरीगेशन के काम लगा सकते हैं वो कनाल वाटर, तो वो वाटर फिर ये कैचमेंट से आके स्ट्रीम पे नहीं मिलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स है, ये ह्यूमन फैक्टर्स है, ये क्या है, कैचमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिलिनेशन ऑफ कैचमेंट बाउंड्री। क्या है डिलिनेशन? ये जो कैचमेंट बाउंड्री है, ये जो कैचमेंट है हमारा, जहाँ पे ये स्ट्रीम्स पे आके जो वाटर हमें मिल रहे हैं, तो ये इसको क्या करना है, इस कैचमेंट बाउंड्री को निकालना है। हमने बोला जैसे कि प्लेरीमीटर क्या है, ये एरिया, टोटल एरिया को निकालने के लिए, बट ये कैचमेंट बाउंड्री कितने से कितने तक के कैचमेंट बाउंड्री है, जो कि नेबरिंग के साथ ये कैचमेंट एरिया को क्या है डिवाइड किए हुए हैं। तो इससे क्या होगा, हमको डिलिनेशन यानी कैचमेंट बाउंड्री को कैसे डिलिनेट करेंगे, जनरली हम लोग उसके लिए जीआईएस टूल यूज़ करते हैं। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है आर्क जीआईएस वगैरह, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हम लोग को यूज़ किया जाता है ये कैचमेंट बाउंड्री को फाइंड आउट करने के लिए। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल नेटवर्क को यूज़ करते हैं। एक्चुअल नेटवर्क क्या है, डेम, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डेम यानी क्या है, इसका 3D एलिवेशन व्यू, इस कैचमेंट एरिया का 3D व्यू, वो उसका एक्चुअल हम लोग जब डिजिटली अब डेटा कलेक्ट करते हैं, डिजिटल जो 3D व्यू है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इस कैचमेंट एरिया का हम लोग बाउंड्री को वी एक्सट्रैक्ट द बाउंड्री फ्रॉम दैट particular 3D map, that particular digital 3D terrain. Okay, so this is the main delineation of catchment boundary. So that's it, or that's all about catchment. So thank you dear all, thanks for watching my video. If you like my video, then please do share my videos and like my videos, and please do subscribe my channel Civil Engineering Studies, and wait for the next video. Thank you.